السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. جو ہے میں اس سے ہٹ کے اب اس طرف آ رہا ہوں کہ بہت سے ایسا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہے، تو کس طرح پتہ چلے گا کہ کام کر رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ماضی فعل ماضی استمراری بنانا ہو تو کیا کہتے ہیں، کانا پلس فعل مضارع لگائیں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا. جب ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ کنٹینیوس، یہ سب جانتے ہیں کر رہا ہے. ماضی استمراری ہم اردو میں بولتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. انگلش میں یوز ٹو کی جگہ استعمال ہوتا ہے کر رہا ہے، یوز ٹو پلے، وہ کھیلا کرتا تھا. کرتا تھا یا کچھ زمانے میں کر رہا تھا. جی کرتا تھا تو کیا کر رہا تھا، کیا کرتا تھا اس زمانے میں کر رہا تھا، اب نہیں کر رہا. ہیبیچول ہاں پاس میں سے ہوا ہیبیچول بھی ہے، اور دوسری بات ہیبیچول اس وقت تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں پاس ہے. یہ ذہن میں تو کانا پلس فعل مضارع. فعل مضارع اس کا کون سا ہے کہ کوئی بھی حرف ہے، یتان آ رہا ہے، کوئی بھی حرف ہے. لکھتا تھا، کتابہ مانے لکھتا تھا، یکتبو وہ لکھتا تھا. کتابہ مانے لکھا، یکتبو وہ لکھتا تھا یا لکھے گا، ٹھیک ہے نا. تو کانا پلس فعل مضارع لکھیں گے تو بنے گا کیا، ماضی استمراری، فعل ماضی استمراری. یاد رکھیے کنٹینیوس، یہ ذہن میں بتانے کا ہے. اور میں آپ لوگ بار بار سنیے اس کو تاکہ یہ یاد ہو جائے کہ فعل ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس بنانے کے لیے کانا کے ساتھ فعل مضارع جو بھی برپانا ہو، یعنی جس بات کی فعل کی جائے، جس کام کے لیے کہا جا رہا ہو وہ فعل مضارع میں ہوگا تو ماضی استمراری بن جائے گا. اس کے ہم جب معنی کریں گے تو وہ اسی جیسے کانا یکتبو، کانا مانے تھا، کانا کے اصل مانے تھا، تو وہ لکھتا تھا. اگر لفظی معنی کر رہے ہیں وہ لکھتا تھا، ٹھیک ہے، یا پرانی زبان کی وہ لکھے تھا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لکھا کرتا تھا تو وہ لکھتا تھا تو معنی یہ ہے کہ آپ اس کو تصور میں لائیں تو وہ لکھتا تھا، یعنی اس زمانے میں وہ لکھا تھا، کنٹینیوس لکھتا تھا. اب نہیں لکھتا لیکن وہ ماضی میں لکھتا تھا، لکھا تھا. اس سے معنی کیا ہوا ہے کہ ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہو گیا. نمبر 2 آئیے، ماضی فعل ماضی بعید. اگر پریزنٹ کنٹینیوس بنانا ہو تو کیا کریں گے، پریزنٹ کرتے ابھی تو اس کے سکتے اس میں پاسٹ آئے گا. پاسٹ کنٹینیوس جو ہے یہ تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا کہ ماضی سے کرتا ہوا آ رہے ہیں حال میں. کنٹینیوس کا مطلب تو یہ کہ کر رہا تھا، لکھا کیا کرتا تھا، کر رہا تھا. ہمارے دیکھ رکھے وہ سائیکل چلا رہا تھا، کیا وہ کون سا جملہ پاس کر دیا. وہ پڑھ رہا تھا، پہلے یہ کون سا جملہ ہوگا کہ آپ ماضی سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم یہ کون سا وہ ہم نے لفظی چن کے کہا، اس کو پرایا مانا، اس کا معنی وہی آئے گا. کیا کرتا، کر رہا تھا، لیکن ہم کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک تو وہ کرتا تھا اور تھا ہے. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں he was playing since. یہ کس دیکھیے he was studying، وہ پڑھ رہا تھا، اب نہیں پڑھ رہا، اب تو کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے. وہ پڑھ رہا تھا ماضی، تو کہانے کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے، ہی واز اسٹڈنگ میں جو نا وہ ہو جائے گا پھر ہی یوز ٹو اسٹڈی، وہ پڑھا کرتا تھا. اب نہیں پڑھتا نا، اب نہیں پڑھتا نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نا وہ مکس ہو رہا ہے. ہی واز اسٹڈنگ سم تھنگ ایلس، اور یہ جو ہے نا میں اس لیے اس کا وہ لفظی معنی بتا رہا ہوں. لکھا کرتا، کانا معنی تھا، جی
यक्तवु माने लिखता था, लिखता था। वो लिखा करता, लेकिन इसको अगर आप वो रखें कि लिखता था, यानी अभी नहीं लिखता, हाँ मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस नहीं है। लिखता मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास कंटिन्यूस नहीं है। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, इस्तेमाल नहीं, इस्तेमारी जो माजी है इस्तेमारी। इसको कहते हैं कंटिन्यूस इस्तेमारी। आपने उर्दू पढ़ी है? उर्दू में स्कूल में भी इस्तेमारी, कंटिन्यूस। उर्दू में भी इस्तेमारी कहते हैं। अच्छा, अब ये माजी फेल माजी बाई दूर थी, क्या हुआ? फेल माजी बाई, बहुत दूर। अब इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसके मैं आगे लफ्ज़ तो इंग्लिश नहीं में भी लिख देखे देना। इसके आगे काना इंग्लिश में भी लिख देना, जैसे पहले माजी इस्तेमारी लिखा है ना आपने, इसके आगे इंग्लिश में लिख Past देना, continuous। वैसे लिख के याद रहे। पास कंटिन्यूस लिखते हैं। सही, क्योंकि इस्तेमरारी ये असल में यूज्ड टू नहीं यूज्ड टू है। के माने तो उस वक्त होगा जब आप जैसे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे शो करेंगे, जो यूज्ड टू होगा। सूरज निकलता है, आज भी निकलता है, कल भी निकलता है, यूज्ड टू होगा। वो यूज्ड क्लियर? सूरज निकलता है, ये यूज्ड टू हुआ। आज भी हो। लेकिन जब इसको इंग्लिश में नहीं। करते हैं तो वो बोलते हैं ना सनराइजेस इन सनराइजेस, हाँ सूरज निकलता है, तो नहीं लगा रहे ना। हम यूज्ड टू कहाँ लगा रहे हैं? हाँ तो वही मिक्स हो रहा है सर ये बीच में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो है ना, आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी है कि सूरज निकलता है तो बरात के आज भी निकलता है, कल भी तुम्हारी निकलता होगा है, कि यूज टू है वो। निकल इट इज कंटिन्यू टू यूज टू, यानी निकलता है, ग्रुप होता है, निकलता है, उसको हम तो सर ये तो निकलता है ना, लेकिन लेकिन एक अगर और बात निकला बताऊं। करता था तो फिर हम यूज टू करेंगे। ये तो है कि निकलता है, ये तो प्रेजेंट है, सही एक्सेप्ट होता है कि ये तो है, ये निकला तो करता था। और वो अगर ये चीज हो रहा है कि निकलता था, हाँ, अब नहीं निकलता। हाँ तो नहीं मतलब ये दोनों अलग बात अलग ये टेंस है ना। इसको असल में इसको मानी तो ये करना Past है, चाहिए। past। काना काना के साथ जो काना ये वो लिख रहा था, ठीक है, वो इतनी ही कर देंगे, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको दोनों माने आते हैं। काना माने था, एक तो वो माने लिखता था, लिखा है, ये लिखेगा। लिख रहा था वो। अच्छा ये देखिए, वो लिख रहा है, जो माने होगा वो तो सही कह रहे हैं, मैं इसकी ताकि आपको मीनिंग याद रहे इसलिए काना माने था, जब तो उन्होंने लिखता, तो वो लिखता था, जब तो माने वो लिखता, ठीक है ये ठीक है। और ये इसलिए कि ताकि आपको वो लिख रहा था वो फिर अलग बात हो जाएगी। नहीं, उसके मानी वही होंगे हिंदी। अगर सेंस में लिया जाए तो अगर ये काना या तो आपको जब आएगा तो वो काम हो रहा था किसी जमाने, काना जो है वो लोग झुटला रहे थे, जी जी वो हक को झुटला रहे थे, तो वो उस वक्त झुटला रहे थे, अब नहीं झुटला रहे, सर वो लोग झुटलाया करते थे। झुटलाई करते थे, ये भी तो इसका मानी वही हुआ। सही आप इसको इसमें हो सकता है बातचीत में कंफ्यूजन, या मुझे मेरे बताने में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। बहरहाल अब ये माजी वही डाल है, फेल काना माने था और फेल माजी होता है, तो काना कताबा, काना माने अच्छा, पहले माजी भाई क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट। ये भी Past- लिखने को भी ये फिर हम आज से एक हफ्ते एक महीने या एक साल बाद देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि है क्या चीज़। या उसके माने पढ़ने पर फिर से होता है कि वो काम हुआ था, किसी हो चुका जमाने में था। हो चुका है, हो चुका है या हुआ था। तो काना माने था और कथाबा में लिखा, उसने कथाबा ने उसने लिखा ना, और काना माने था उसने लिखा था, उधर तो फर्क है। या वो लिख चुका था, अगर माना चाहे आप ऐसे भी लिख कह चुका था भी ऐसे। उसने लिख लिया था, ये सारे माने सीखे। उसने लिख लिया था, वो लिख चुका था, और उसने लिखा था, ये तमाम जो है पास्ट परफेक्ट। सही। ये क्लियर हो गए, दोनों क्लियर हो गए इंशाअल्लाह ताला। फेले माजी शकिया, जिसमें शक पाया जाता पर है ठीक है। शकिया को क्या कहते हैं, वो तो आपको पता है ना। मे बी नहीं इसका पर है, नहीं उसको क्या कहेंगे, मतलब हो कि सकता है कि वो
कौन सा फिर यानी कि टेंस कौन सा है, क्या कौन सा टेंस होगा? ये सवाल है तो उसमें आ जाएगा। नहीं शक है, सवाल शक है, डाउट है। वो तो क्वेश्चन मार्क है ना, सवाल क्या क्वेश्चन मार्क। बहरहाल आप सोचिए जब तक फेल माजी शक्या, उसमें क्या होता ये है कि हम शक मज़ारे का या मज़ारे का यकूनू लगाते हैं। मज़ारे का यकूनू, यकूनू के माने क्या है? होगा, लिखे वो था या होगा, होगा, शक है। था या होगा, ठीक है ना। फेल माजी क्या कताबा, उसने लिखा होगा या लिखा था, शक है। शक है ना, उसने लिखा होगा, सही। है या नहीं? शायद की लिखा हो। अब शायद भी लगा रहे हैं उसके साथ होते, पास लेकिन पॉसिबिलिटी वालों हैं? पास पॉसिबिलिटी होता था कि नहीं, वो शक है, डाउटफुल। हाँ वो उसमें डाउट ये है ना पॉसिबिलिटी थी कि नहीं नहीं, वो टेंस के हिसाब से होगा ना। ये आपको दे रहा हूँ इम्तहान है, कल अगली क्लास में मैं सबसे पूछूंगा शक्किया का इंग्लिश में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके देखें ना कि क्या कहते हैं। अच्छा, ये हो गया एक है? सही। मेरा भी आदत ये करता हूँ। आपकी आपका जो वो पढ़ाते हैं इसलिए आपको तो ज़्यादा बात है। अच्छा, काना का इस्तेमाल जब ऐसी चीज़ से किया जाए, मैंने यहाँ पर बता दिया। काना का जब इस्तेमाल हम करते हैं और अल्लाह की वो आती है, यानी कि अल्लाह के बारे में हम कुछ बात कह रहे होते हैं, उसकी पढ़ाई बयान कर रहे होते हैं या उसकी कोई उसके बारे में दुआम या अज़लियत कोई मुस्तक़िल जो काम होता है, जब हम काना लगा के जो भी बात कहेंगे अल्लाह के लिए ख़ास तौर पर, तो उस काम में थानिया मुस्तकिल यानी कि वो अभी से है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था और शुरू से हो रहा है और होता रहेगा। जब हम काना लगाएंगे तो उसके मानी जब भी आप करेंगे तो उसमें ये ताक़ुब ज़रूर रखें कि अभी भी पहले भी होता है, माजी में भी होता था और मुस्तकिल में भी होता रहेगा और बिहार में भी होता है। ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये सिर्फ अल्लाह के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो जैसे है वकान अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीमा, इसमें था का मतलब नहीं आया, मतलब ये हाँ, इसमें कि ये जहन में रखना है हमने। नहीं, जैसे है ना, अब हम कहते हैं ना कि सूरज निकलता था, तो उसमें हम कहते नहीं कि आज भी निकला कल भी निकला, हम ये नहीं, कहते नहीं अल्लाह के हैं। बारे में लेकिन तो- एक बात याद रखिए कि हमारी उर्दू ज़बान में जब भी कोई नेचुरल फैक्ट या वो कह रहे थे हकीकत यूज टू वाली बात है, तो जब की जाती है तो किस में? प्रेजेंट टेंस में। इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस में, उर्दू में प्रेजेंट में, लेकिन अरबी में काना लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? काना। काना के मतलब वो काम अभी भी हो रहा है, आइंदा भी होगा और होता वो रहेगा। अभी भी हो रहा है, यानी माजी में हुआ और मतलब क्या आइंदा भी होता रहेगा। वो काना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्लाह के लिए जो है, काना अल्लाह के साथ आता है। वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह जो है वो हर चीज़ को मुस्तकिल जानने वाला। अलीम के मानी यही होता है। अलीम, हमेशा देखिए मैं बताऊँ एक चीज़, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, ठीक है। रहमान की शायद मैंने बात बताया, मैं रहीम की भी बताया जी, लेकिन रहीम के मानी ये है कि वो अभी भी रहीम है, कल भी पहले भी रहीम था, ठीक है। आदमी कादिर हो सकता है, ठीक है। कदीर आप नहीं। कादिर कहते पंखा उतार दिया आपके नीचे, आप कादिर हैं पंखा उतारने के, बिजली का काम करते हैं आप, कादिर हैं, आपको करंट लगे, आपको पता है कहाँ से पकड़े क्या करना, आप इस चीज़ पर कादिर हैं कि पंखा उतार देंगे, ठीक है ना। लेकिन हर वक्त पंखा नहीं उतारते रहेंगे आप, नहीं, ठीक है ना। एक वक्त होगा कि आप है ना, या एक चीज़ और देखिए, ये कदीर नहीं हो सकता। कदीर नहीं हो सकते, कादिर हो सकते। मुझे एक और चीज़ होता है कि एक बच्चा गिर गया या एक्सीडेंट हो गया, आपके जहन में
उस पे रहम अफसोस आया, तो अफसोस जिसको आता है उसको फाइल के वजन पे राहिम कहते हैं। फाइल के वजन पे फे एंड लाम से, और फाइल माने काम करने वाला। तो आप राहिम हो गए क्योंकि राहिम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी जगह चले गए तो आपको शायद वो किस्सा याद भी नहीं था। फिर है ना आप लोगों दोस्तों से बताया कि वो ऐसा हुआ था, थोड़ी देर किस्सा हो, फिर आप अपनी शादी में गए थे, शादी में दूसरी दूसरी बातें होती, वो ख़त्म हो गए रहें। लेकिन अल्लाह रहीम है, उस वक्त भी रहीम, अभी भी रहीम है, आइंदा भी रहीम है। रहीम वो काम को कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। हमेशा क्या समझे? रहीम, कदीर और जितनी भी अल्फाज इस तरह के हैं वो अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम है जो है ना एक्सपर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके मतलब ये है कि वो मुस्तकिल बड़ा आंसर है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। सर जैसे वो उसमें सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आया था, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, कुन और फयकुन, बस वो जब चाहता है तो वो चीज़ हो वो जाती कुन है। फयकुन तो आएगा। वो हुक्म है, कुन माने हो जा। क्या नहीं मतलब वो- इसके काना के मतलब है टू बी बने हैं, ठीक है। काना के जो है माजी पास में होता है कि उसमें, लेकिन जो कवाना है उसके माने टू बी होना, कोई भी काम हो। टू बी का इस वाज ये होता है ना, टू बी का रूल क्या है हमारा के आपके उसमें इज़ा है। इंग्लिश में होना इज आर वाज, ये सब टू बी के फैमिली है। सही कह रहा हूँ भाई? जी आप लोग तो पढ़े लिखे हैं भाई, मैं कह नहीं सकता कि पता नहीं आप। अच्छा, तो यहाँ अलीम के मतलब अलीमन, हमेशा वो से रहे। हमेशा से यानी कि कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा, हर चीज़ बिकुल्ली शैइन, हर चीज़ पे, जैसे हमने जोर डालने के लिए हरगिज़ में मार्क के बाद भी लगाया था तो हर चीज़, ये तमाम चीज़ ने बिकुल्ली शैइन, हर चीज़ जानने वाले। आप नहीं जानने वाले हर चीज़ का, मैं नहीं जानने वाला, और कोई भी नहीं जानने वाला, सवाए अल्लाह है जो हर चीज़ का जानने वाला है। या दूसरा लफ्ज़ है कान अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरा, कदीर वही लफ्ज़, अलीम, कदीर, ये सब वो आएगा। अच्छा ये मकान अल्लाह वो है ना, हाँ हाँ, ये आ रहा है इसमें सर, क्या बताओ वो कान है वाह, नीचे नीचे वाला नीचे वाला, नीचे वाला। कहाँ हाँ हे को क्या? हे को हटा देना, कौन सा? हे लगाया हुआ। वाह हाँ ये ओहो, ये वो लिखा था असल में, वो- वकाना, वकाना। आपने वो लिख दिया। हाँ वो लिख दिया असल में, वो तर्जुमा कर, जहन में तर्जुमा होगा तो वो लिख दिया, पर आगे वो इसके मैं एक बात का इजाफा कर दूँ कि काना अल्लाह के साथ अगर आएगा हाँ तो उसमें था का तर्जुमा नहीं किया जाए। हाँ, नहीं वो आपने कहा ना कि continuous है। उसने लिखा था, ये नहीं, उसके मानी यही है। जैसे हम कह रहे हैं सूरज निकलता है, हम उसमें नहीं कह निकलेगा, पहले भी निकलता था, ये नहीं कह रहे हैं। एक लफ्ज़ कहते हैं तो वही यहाँ पर होगा। अल्लाह के साथ कभी भी था नहीं आएगा। हाँ है में आ जाएगा इसमें। अच्छा, हमारी क्योंकि ज़बान में है आता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, वरना तो उनकी ज़बान के हिसाब से। अच्छा, फिर ये और तीसरा रूट ये कि काना इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ में सिफ्त के मुतल्लिक बात की जाए तो वो सिफ्त उसके साथ लाजिम मलजूम समझी जाती है। ऐसी सिफ्त जो काना के साथ आ रही हो तो उसके साथ वो लिफ्ट चिपकी भी है, समझो, ठीक है। वह काना इंसान कफूरा, इसमें किसको बात को सके? इंसान ना शुक्र है, इसमें किसी को शक भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो है हमारे साथ लगी हुई है, कफूरा तो इनकार करने वाले को। इनकार करने वाला, इनकार हम अल्लाह की आपने कहा शुक्र करने वाला, वो ना शुक्र है। ना शुक्र ही के माने में आता है इसको, इसलिए कि कुफर कहते हैं इनकार करने। इनकार करना, हक का इनकार करने वाले क्या हुआ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, कुफर माने एक और होता है कि कुफार उसको कहते हैं जो बीज बोता है, उसको कुफार माली माली को नहीं। एक कोई चीज़ छुपाता है ना मिट्टी के नीचे, तो हक को छुपाने वाला, इनकार करने वाला किसान जो है उसको किसान को तो दाने को छुपाता है। अब ये कि
4 हो गए, एक और भी हो गया। अच्छा, फेल अमर जो है इसका बनता कुन, कुन फया और ये आप सब लोग जानते हैं कि कुन के माने क्या है। यकुन माने हो जा, यकुन माने हो जा, कुन और यकुन, कुन माने होना, यकुन माने हो जाता है। ये दोनों अमर हैं, ये ध्यान में रखिए। कुन फया कुन हो जा, तू हो जा, जो काम भी उससे कहा जा रहा है तू हो जा। फा फिर या देन वो हो जाता है। यकुन बस जाता हो है। जाता है। बस या फिर वो बस। तो या जो कुछ पस, उसने कुन कहा और वो सारी बात आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। पस भी कहेंगे, फिर भी कहेंगे, तो भी कहेंगे, वो हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही गंभीर किस्म का वो है और बहुत ही दिलचस्प है कि आपको काना के इस्तेमाल से आपको पता चलता है क्या। जब मैंने इसको एक दफ़ा Tense खोजिएगा, इसको देखिएगा तो आप जब पढ़ रहे होंगे ना तो आपको होगा कि हाँ, बाद वक्त ये लगता है यार ये बानी क्यों लिखे इन्होंने, आपके जहन में आ गई तो बानी आपने, लेकिन आपको हम अभी इतने इस लायक नहीं पहुँचे, उनकी लेवल पर नहीं पहुँचे जिन्होंने तर्जुमा किया, उनके लेवल पर पहुँच भी नहीं सकते जिन्होंने किया है। वो वजह देखें कि क्या है, काना आया है या कूनो आया है या क्या आ गया, उसके बाद कोई फेल के बाद या कोई ऐसे के बाद हर्फ जर आ गया है इसम के बाद, तो वो मानी चेंज हो गई। जैसे जहाबा है, जहाबा माने गया, जहाबा बे ले गया। आप देखिए खातामा के माने कंप्लीटेड, खातामा के माने कंप्लीटेड, खातम कुरान कंप्लीटेड, लेकिन खातामा अला आ गया तो उसके माने हैं मोहर लगा। वहाँ लगा। इसी तरह खतमा बे के भी और तबा बे के, तबा भी जो तबा अला होएगा उसके माने मोहर लगाना। एक और चीज़ जहाँ मुझे याद आ गई, काला के साथ जब हरफ जर अला आता है इसको सिला कहते हैं। ठीक है, ये जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन जैसे हाँ प्रीपोजिशन कहते पर हैं, कहते हैं ना, पर हाँ, तो प्रीपोजिशन जब आ जाती है तो मानी चेंज हो जाती है। जैसे टेक माने लेना, लेना, और एक प्रीपोजिशन लगाई ऑफ, टेक ऑफ माने खोलना। मानी क्या था, कुरान की आयत है ना, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। हर की उसकी, ये तो कह रहा हूँ कि वो उस वक्त आपको पता चलेगा। ये सब ना एक बहुत गंभीर चैप्टर है, जब आप इसको मास्टर हो जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये है। देखिए सेब कहना जो है, मैं सेब कहूँगा आपके जहन में तस्वीर आ गया सेब का, किसी गिरीन आया हो या कुछ आया, लेकिन सेब ही आया। ये अलग है कि आपके सेब हरा आया, उनके यहाँ खूबसूरत आया सेब, लेकिन सेब ही आया। तो वो जो लफ्ज़ आए उसका तर्जुमा आपके जहन में, तो वो आए वही जो जिस चीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए काला जब हरफी अला सिरा के साथ आता है तो इसके माने किसी के खिलाफ कोई मनगढ़ंत बात कहना या बहुतान लगाना। काला के साथ जब काला अलल कोई भी किसी के बात की जा रही है तो उस पर बहुतान लगाना कि वो तो ऐसा है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। बहुतान उसको कहते हैं जो उसमें ना हो और आप बयान करें, वो तो झूठा है। तो अगर हम कहें काना आला काज़िबुन, नहीं तो वो झूठा है। काना आला काज़िबुन कहेंगे तो अल्लाह से पहले इसम आएगा ना, कोई काज़िबुन नहीं, ना हो अल्लाह ऐसे। काला जब काला कहेंगे तो उसने कहा, तो वो जो उसमें ज़मीर में जो पहला लफ्ज़ होता है फेल का, उसमें वो ही जो है वो जो है उसमें छुपा हो चुका, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं हुआ काला, उसने कहा, तो अब ये फेल नहीं रहा, ये इसम हो गया। हुआ इसम है, हुआ काला उसने कहा, और जब हम सिर्फ काला लिखते हैं तो वो हुआ जो है उसके बीच में छुपा हुआ। क्लियर ये बात तो है ना। ये अल्लाह के बाद फिर इसम आएगा, वो जो बात होगी वो तो कहेंगे ना, उसके अला करके जो बात उस पर लगाई जा रही है, बहुतान की जा रही है, जिसके ऊपर बहुतान बांधा जा रहा है उसका हाँ। नाम आएगा यहाँ, उसका नाम आएगा ना, अल्लाह। उसमें अल्लाही है। नस्ब में आएगा उसका नाम, मफूल में आएगा उसका नाम।
उसका नाम मफूल में करके आएगा। ठीक है, सही। तो ये था ये कतूरा के क्या माने होंगे? वो काना इंसान कतूरा, पूरा। अब बताइए तो कतूरा का माने, तोड़ने तो नहीं। कत्ता। कतूरा का माने अभी जहन में था, अब निकल गया है। उस समय मैं बताना चाह रहा था, फिर वो दूर चला गया। कतारा, कतारा मादा है उसका। कतूरा कतरा कोई से नहीं है ना, ये आपके गाँव तो कतारा। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये है कुंतु। ऐसी कौन सी एक वो है जो आप बहुत पढ़ते हैं? आयत करीम। आयतल करीम। क्या कहते हैं उसमें आप? सुभान अल्लाह नहीं कुंतु अपने ठीक है, मुझे ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंत अंता सुभान, इन्नी बेशक में, इन्नी माने बेशक शक, कुंतु मैं हूँ। रिपीट किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, मिनज़ ज़ालिमीन, जुल्म कर रहा है। और ज़ालिमीन को इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग डूअर। ठीक है, एक और चीज़ आखिरी में बात करता चलूँ कि असल में आज एक तो नहीं है इसका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस्लाम में है वो तक़वा है। तक़वा के लिए बहुत सी खूबियाँ हैं। तक़वा उसे कहते हैं वो जुर्म, वो गलत काम जो आप आसानी से कर सकते हो या कर सकते हो, वो ना करें। आपको कर सकते हैं, लेने उसको उसको मार सकते हैं, उसको छीन सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोई इसको नहीं होगा कोई ये क्या कर रहा है, हमारे माशरे में तो कोई बोलेगा भी नहीं। सबको पता है कि भाई काम ही नहीं होता बगैर रिश्वत दिए, तो कोई बोलेगा भी नहीं। आप कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। अभी हाल में एक साहब को 30 लाख रुपए पड़े, 20 लाख या 30 लाख रुपए अभी आया है कि उसको गिरे हुए मिले। उसने उठाया और पहले तो तलाश किया कि किसके हैं ये, उसके बाद उसने तमाम लोगों को बताने के बाद उसने थाने चला गया। उसने कहा ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, इसको तलाश करना है, और ये वो फिर पता चला वो पुलिस ने भी जब देखा कि भाई छुट्टी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो वो ना उनको दिया। पुलिस वालों को भी हुआ है कमाल, तो नहीं उन्होंने जरूर किया। लेकिन ये कि देखें ये होता है, आप कर सकते थे, कोई किसी ने देखा थोड़ी आपको क्या उठाया आपने, इतने से इसमें थैले में या लिफाफे में होता है। ठीक है ना, आजकल तो 5,000 होते हैं। जुर्म करना कितना आसान है कि अगर यही छोटे नोट हों तो ट्रक पर रख के रहे लोग कि ये भाई तुम्हारे घर उतार रहा मैंने उसको। लेकिन बड़े नोट जो है, अभी जो हाल में अफगानिस्तान में बात कर रहा हूँ, गया था अफगानिस्तान में जो हुआ था कि लोगों के घर से जो पैसे निकले बगैर, नहीं ठीक है चलने दीजिए, चलो।